share with you the achievement that the university has achieved on NAC A++ grade. So I request our esteemed Vice Chancellor Professor Umesh Rai to address the media fraternity. Over to you, sir. मैं मीडिया को एड्रेस करूं इसके पहले डायरेक्टर डीका, जो डायरेक्टरेट ऑफ इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस की डायरेक्टर हैं, डॉक्टर गिनी डोगरा जी, मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार आपको इस पूरे प्रोसीजर के बारे में ब्रीफ करें और अचीवमेंट्स का डिटेल्स आपसे शेयर करें। Thank you, sir. Good afternoon, everyone. Like Mansi said, it's indeed historic and momentous occasion today that our results of NAC accreditation cycle 4 have been declared, and we have, under the visionary leadership of the Vice Chancellor Professor Umesh Rai ji, we have been able to achieve the highest grade of A++ with a CGPA of 3.72. This is a marked improvement over the last year accreditation we got in cycle 3, which happened in 2016. Form with details, a comprehensive form जहाँ हमको data submit करना था NAC portal पे, and 70% data हमारा क्वांटिटेटिव डेटा था जो NAC ने अपने कंप्यूटराइज सिस्टम से ऑलरेडी असेस कर लिया था अर्ली इन द ईयर. दिस वाज फॉलोड बाय अ स्टूडेंट सेटिस्फैक्शन सर्वे, जहाँ पे NAC ने डायरेक्टली हमारे स्टूडेंट्स को अप्रोच किया थ्रू ईमेल एंड उनसे फीडबैक लिया यूनिवर्सिटी के बारे में. वी अचीव्ड अ वेरी हाई ग्रेड ऑन द स्टूडेंट सेटिस्फैक्शन सर्वे एज वेल. And then last week, NAC peer team comprising of eminent academicians, जो vice chancellors of universities और leading researchers and academicians आए थे. They were a group of 7 people, a team of 7 people, जिन्होंने हमारी पूरी यूनिवर्सिटी में in a duration of 3 days they went to our teaching departments, हमारी central facilities, हमारे research, हमारा hostels, हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेज, इनफैक्ट हमारे ऑफसाइट कैंपसेस भी हो गए और अपना सारा कंसोलिडेटेड ग्रेड, क्वालिटेटिव ग्रेड उन्होंने हमको NAC को हमारा सबमिट किया. बेस्ड ऑन द क्वांटिटेटिव डेटा विच हैड अ कंपोनेंट ऑफ 70% एंड क्वालिटेटिव डेटा विच हैड अ कंपोनेंट ऑफ 30%, हमको ये कल जो लास्ट नाइट हमारा ग्रेड आया है 3.72. एंड हमारे देवर अबाउट 7 पैरामीटर्स जो हमको NAC ने हमारा पूरा जो फ्रेमवर्क था असेस किया. पहला था टीचिंग लर्निंग, सेकंड था पहला था करिकुलर एस्पेक्ट्स, सेकंड वाज टीचिंग लर्निंग एंड इवैल्यूएशन, थर्ड वाज रिसर्च इनोवेशन एंड एक्सटेंशन, फोर्थ वाज स्टूडेंट सपोर्ट एंड प्रोग्रेशन, फिफ्थ था गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट, लीडरशिप गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट, देन वाज इंस्टीट्यूशनल वैल्यूज़ एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस. और जो हमने कल रिपोर्ट देखी है अपनी जो पोर्टल पे आई है, हमको ईमेल से भी आई है, वी हैव स्कोर्ड अ फुल 4 on 4 ऑन पैरामीटर्स लाइक गवर्नेंस, लीडरशिप एंड मैनेजमेंट, ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लर्निंग रिसोर्सेज, एंड अ 3.9 समथिंग ऑन आर इंस्टीट्यूशनल वैल्यूज़ एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस. बाकी एरियाज़ में भी वी आर अबव 3.5. पूरे कंट्री में there are only 8 universities which have got A++, and university stands on the 4th rank based on the CGPA. Andhra University, Bangalore University and GNDU are the only universities जो हमारे से ahead है in cycle 4 accreditation. So I think under the leadership of our Vice Chancellor, जहाँ हमने पिछले 2 साल से इतने नए quality initiatives लिए towards fraternity of the University of Jammu, but for the entire region. Outset, I express my gratitude to Honorable Chancellor Shri Manoj Sinha ji, within 50 in NRF ranking. Apart from that, this is the another major achievement, and that substantiates the NRF ranking position. Even more than that, जम्मू विश्वविद्यालय जम्मू कश्मीर का पहला विश्वविद्यालय हुआ है जो NAC के द्वारा A++ एक्रेडिटेट किया गया है.
So that Jammu University has created the history in the JNK to be the first university accredited by NAC as A++. And as Dr. Gini Dogara said, we have entered into the fourth cycle. So our assessment was for the fourth cycle of that NAC assessment. And in that fourth cycle, total 8 universities have been accredited A++ in India In the last 3 years. in last 3 years. And we are at the fourth. If you see that the CGPA score 3.72, so keeping that in mind, we are at the fourth position. So it's a big achievement, and this achievement would not have been possible without the support of the government. And I would like to share with you that when I requested Honorable Chief Minister कि NAC की मेरी टीम आ रही है और क्या संभव है कि एक डिनर आपके द्वारा आयोजित हो सकता है, उन्हें कहा बिल्कुल। और न केवल चीफ मिनिस्टर साहब ने अपने रेजिडेंस पर वो डिनर रखा जिसमें डिप्टी चीफ मिनिस्टर और हमारी एजुकेशन मिनिस्टर साहिबा भी मौजूद रहीं। साथ में जब मैं ऑनरेबल अपने चांसलर साहब से मिला तो उनसे भी रिक्वेस्ट किया और उन्होंने कहा बिल्कुल करेंगे। तो 2 डिनर, एक ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर जी के द्वारा दिया जाना और दूसरा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर के द्वारा दिया जाना। उस डिनर में डिप्टी चीफ मिनिस्टर का रहना और एजुकेशन मिनिस्टर का रहना यह बतलाता है कि हमारी जो गवर्नमेंट है, चाहे वो चांसलर साहब हों और चाहे वो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब हों, या है कि जम्मू विश्वविद्यालय A++ आया। साथ में इसकी तैयारी 3 साल से जब मैं ज्वाइन किया था तब से चल रही है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि मुझे जो जम्मू विश्वविद्यालय में ओनरशिप दिखाई पड़ी है, वह ओनरशिप मुझे अन्य किसी शिक्षण संस्था में दिखाई नहीं पड़ती है। और इस बात को जो टीम NAC आई थी, लोग हैं डीन एकेडमिक अफेयर्स, डीन रिसर्च स्टडीज, डीन प्लानिंग, DSW, या हमारी जो स्टीयरिंग कमेटी थी उसके भी मेंबरान यहाँ बैठे हुए हैं। लंबा हो जाएगा अगर हम नाम लेंगे उनका। तो सभी लोगों ने मिलकर के काम किया। और साथ में हर एक अध्यापक, हर एक डिपार्टमेंट से, हर एक ऑफिसर, हर एक नॉन टीचिंग, हर एक नॉन गस्टेड, सभी के सहयोग से आज वो दिन आया है। और बच्चों ने अभूतपूर्व सहयोग किया है, लड़कों ने, छात्र छात्राओं ने अभूतपूर्व सहयोग किया है, चाहे वो कल्चरल एक्टिविटीज़ के द्वारा हो, चाहे हॉस्टल में उनकी पेंटिंग के द्वारा हो, प्लांट्स लगाने के द्वारा हो। तो मैं आप मीडिया के लोगों को भी कहना चाहूँगा कि 3 साल के मेरे टेन्योर में आपने जो मदद की परसेप्शन जम्मू विश्वविद्यालय का क्रिएट करने में, मैं पूरे जम्मू विश्वविद्यालय की तरफ से आपका आभारी हूँ। और मैं अपनी प्रसन्नता, अपना धन्यवाद अपने सारे जो हमारे टीचर हैं, जो हमारे कर्मचारी हैं, जो हमारे ऑफिसर हैं, जो हमारे छात्र हैं और जो हमारे सिविल सोसाइटी के लोग हैं, जो हमारे एलुमनाई हैं,